Hello, my amazing maths champions. Welcome back. Or if you are new here, a very warm welcome to Smart Maths by Surbi, the channel where math stops being scary and starts being super fun. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम गणिता प्रकाश. ये है वीडियो 1, so buckle up. Today we are going to build a super foundation. By the end of this video, you'll know what are arithmetic expressions, how to compare them without doing big calculations, and we'll also solve every single question from the textbook step by step. क्या तुम रेडी हो? So let's go. तो कभी मन में क्वेश्चन आया ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है क्या? तो चलो आज हम यही देखते हैं. Okay, so first things first. Have you ever seen mathematical phases like this? 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 5 and 18 divided by 3. These are called arithmetic expressions. So arithmetic expression basically एक maths का phrase होता है. It uses numbers and operations like addition, subtraction, multiplication and division. अब ये expression सिर्फ phrases नहीं है. हर expression की एक value होती है. मतलब ये एक number evaluate करता है. For example, the value of 13 plus 2 is 15. We can read this as 13 plus 2 or the sum of 13 and 2. And we use the equal to sign here, right? To show the relationship between an expression and the value. So 13 plus 2 is how much? 15. Means the expression that is 30 plus 2 has the value 15 here. Simple, right? Now, here's something very cool. Different expressions have different values. The number 12 can be written in so many ways. आप खुद ही देख लीजिए. I can write it as 10 plus 2, 15 minus 3, 3 into 4 and 24 divided by 2. अब expressions तो क्या है? Different है, लेकिन answers क्या है? All are equal to 1. आप खुद भी करके देख लीजिए. अगर मैं 10 plus 2 करूं, 12 भी आएगा. 15 minus 3 करूं, it is again 12. 4 3s is 12 and 24 divided by 2 is again 12. So, maths में एक आंसर के बहुत सारे रास्ते होते हैं. And that's the beauty of it. अब एक फन चैलेंज आपके लिए. पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड राइट डाउन एटलीस्ट 3 एक्सप्रेशंस जो भी आपके फेवरेट नंबर के इक्वल है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने 12 करा था. 4 3s are 12, 15 minus 3 12. वैसे ही अपना फेवरेट नंबर के कुछ एक्सप्रेशंस लिख लो. Okay, now we know what expressions are, right? But what if we want to compare two expressions now? Just like we compare using equals to, greater than and smaller than signs, we can do the same with the expressions also. We compare them based on their values. Let me show you with some examples in your book. जैसे हमारे पास है 10 plus 2 versus 7 plus 1. अगर आप देखो 10 plus 2 equals to 12. Similarly, 7 plus 1 is equals to 8. तो कौन सा ज्यादा है? 12 is bigger. So 12 is greater than 8. So we can write 10 plus 2 is greater than 7 plus 1. Similarly, 13 minus 2 है. Okay, so 13 minus 2 कितना होता है? 11. And the second expression is 4 into 3. That is 12. तो कौन सा greater है? Between 11 and 12, obviously the 12 one, right? So 4 into 3 is greater than 13 minus 2 here. So students, ये तो easy था ना? तो अब हम इसी के साथ करते हैं हमारे figure out के questions. So let's go. Question number 1 is fill in the blanks. So both sides are equal. ठीक है, ये हमारा गेम जैसा है तो हम इसको बहुत ही फन तरीके से करेंगे. अब देखो इक्वल टू की 2 साइड्स होती है. वन इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड, वन इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड कौन सी होती है? जो आपकी राइट हैंड साइड है. तो अगर हम इक्वल टू देखें, सो दिस इज राइट हैंड साइड. ओके, और अगर इसको देखें तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है. सो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. सो यू कैन राइट इट एज RHS एंड LHS. अब हम एक एक करके एक्सप्रेशंस को दोनों को सॉल्व करेंगे. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला कर देते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है. सो इट इज 13 plus 4. 13 plus 4 करो, इट इज 17. ओके, नाउ लेट्स गो टू द राइट हैंड साइड. अगर आप राइट हैंड साइड की साइड आए तो इट इज अ ब्लैंक प्लस 6. अब ये ब्लैंक क्या है? अब हमें क्या बोला है? दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है. तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट? द राइट हैंड साइड, राइट? अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो 17 आ गया. राइट हैंड साइड इज डैश प्लस 6. तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू शिफ्ट द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट हैंड साइड. अब ये एक्सप्रेशन कैसे शिफ्ट करेंगे? अब ये है प्लस 6. जब प्लस 6 इक्वल्स टू के ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, सो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा. हमेशा साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. और ये डैश की जगह मैं x लिख लेती हूँ. सो इट कैन गिव अस अ एक्सप्रेशन हियर. तो 17 minus 6 is 11. So my value of x or the blank is what? X here. Sorry, 11 here. Okay. So this is, अगर आप खुद भी करके देख लो, left hand side is how much? 17. वैसे ही 11 plus 6 is again 17. So दोनों equal हो गए left and right side. So this is our answer. अब important rule. जब भी equal to के one side negative हो और नंबर दूसरी साइड जा रहा हो, so it becomes a positive. Okay. तो मैं आपको ये expressions भी बता देती हूँ. नेगेटिव जो होता है
वो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव बन जाता है, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो। सिमिलरली जो पॉजिटिव होता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव। मल्टीप्लाई बन जाता है डिवाइड, और डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई। ये एक्सप्रेशन हमारे बहुत ही काम आएंगे, तो आप इनको हमेशा याद रखना। वेन एवर यू आर शिफ्टिंग द साइन ऑल्सो चेंजेस। बी पार्ट सेज लेफ्ट हैंड साइड मिसिंग है और राइट हैंड साइड हमें दे रखा है। तो पहले हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर देते हैं। राइट हैंड साइड इज 5 6 30, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड तो इज 22 प्लस एक्स, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो आई राइट द एक्सप्रेशन 22 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, आप 6 into 5 भी लिख सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया तो मैं इज इक्वल्स टू 30 लिख देती हूँ। अब मुझे क्या एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक्स का, राइट, एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल्स टू 22 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब इट इज अ पॉजिटिव वन। सो 22 इक्वल टू के ऑन द राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। तो दिस विल बी 30 माइनस 22, दैट इज 8। तो मेरे x की वैल्यू क्या निकल गई, 8 निकल गई। आप खुद भी चेक कर सकते हो, 22 प्लस 8 इज 30 एंड 6 into 5 इज 30। तो हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल हियर। C part of question number 1 says 8 into x is equals to 64 divided by 2. तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, इट इज 8 into x, ठीक है। वही हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, इट इज 64 divided by 2। यही सॉल्व कर लो, 2 3 6, 2 2 सो राइट हैंड साइड इज हाउ मच, 32। तो इट विल बी 8 into x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, करेक्ट। तो 8 into x इज इक्वल्स टू 32। अब क्या है, x जा रहा है उधर की साइड, लेकिन x और 8 के बीच में क्या साइन है, इट इज अ मल्टीप्लाई साइन। सो मल्टीप्लाई साइन व्हेन गोज ऑन द राइट हैंड साइड इट बिकम्स अ, यस, इट बिकम्स अ डिवाइड साइन। तो 32 डिवाइडेड बाय 8। सो 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 4। 8 4 is 32। सो वैल्यू ऑफ x इज 4 here, okay। so 8 4 is 32, correct, and 64 divided by 2 is again 32। so मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। नाउ द डी पार्ट सेज 34 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ, अब इनके बीच में नेगेटिव साइन है, अब उधर जाएंगे तो क्या करेंगे। ये भी बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, जो 34 है विल कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। अब ये माइनस एक्स है, ये ऑन द राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। सही बात है। अब क्या करेंगे, जो हमारा लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब जो नंबर है, दैट विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये इंटरचेंज कर लेंगे। सो दिस बिकम्स एज 34 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स। और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करो 34 माइनस 25, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 9 हियर, ठीक है। तो 34 माइनस 9 इज हाउ मच, 25। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े नंबर की साइड, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटे की साइड। तो हमें क्या करना है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की साइड। तो हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, जैसे 67 माइनस 19, 67 माइनस 20, 35 प्लस 25, 5 into 11, 120 डिवाइडेड बाय 3। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। अगर मैं 67 माइनस 19 करती हूँ तो माई आंसर इज 48। 67 माइनस 20 करती हूँ, सो इट इज 47। आई थिंक प्लस माइनस सबको आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी सबको आता है, सो इट विल बी इजी फॉर यू। 35 प्लस 25 इज 60, 5 into 11 इज 55, 120 डिवाइडेड बाय 3 इज 40 है। अगर आप जो भी हमारे आंसर्स आए हैं उनको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम छोटे टू बड़ा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इफ यू सी, इट इज 40। तो मैंने सबसे पहले 40 लिख लिया है, ठीक है। बीक हमेशा बड़े वाले नंबर की साइड खुलेगी, so I made a beak and the next number is 47, okay। then we have a beak 48, then 55, then 60। this is how we have arranged it in ascending order। अब हमने जो नंबर्स हमारा रिजल्ट आया था उसको तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन था उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। जैसे 40 का क्या था, 120 डिवाइडेड बाय 3, देन वी आर गोइंग टू राइट इट एज 67 माइनस 20। तो हम एक एक करके इसको लिखते हैं। तो देखो, फर्स्ट आई हैव रिटन इट एज 120 डिवाइडेड बाय 30, 67 माइनस 20, 67 माइनस 19, 5 into 11 एंड 35 प्लस 25। तो आई हैव शोन इट विद द हेल्प ऑफ अ बार हियर, कि आपको ये और भी अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि ये एक्सप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं।
अब एक प्रो टिप आपके लिए, ऑलवेज कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज फर्स्ट, राइट देम नेक्स्ट टू ईच द एक्सप्रेशन एंड देन अरेंज द एक्सप्रेशंस हियर. डोंट ट्राई टू डू इट इन योर हेड. ये मिस्टेक का सबसे बड़ा रीजन होता है. सो ऑलवेज फॉलो दिस प्रो टिप. अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑनेस्टली दिस इज व्हाट मेक्स द चैप्टर सुपर स्मार्ट एंड फन. We are going to learn how to compare the expressions here, but without doing the full calculation. This is real life skill, fast, sharp and thinking. So students, which is greater? 1023 plus 125 or 1022 plus 128? आप सोच रहे हो ना ऐड कर देते हैं, लेकिन नहीं. You could think more smarter here. Imagine राजा के पास 1023 marbles है and he got how much? 125 more marbles today. And Joy के पास 1022 marbles है and he got 128 more marbles today. So who has more? Okay, so Raja started with more marbles. अगर हम बस first वाला compare करें, so it is 1023 versus 1022. राजा के पास plus 1 extra marble है जब उन्होंने start करा था. But Joy got more marbles today. That is, Joy के पास कितने? 128 versus 125. So Joy has 3 extra marbles now. So Joy got 3 more extra than Raja did. But Raja only had 1 more to start. अगर हम इसका net result देखें, 3 minus 1, that is 2 here. More marbles than Raja. So 1023 plus 125 is greater than 1022 plus 128 here. C. No big addition needed, just smart thinking. The key idea is if both side changes, track the net difference here. अब एक और example ले लेते हैं. Imagine Raja has 113 marbles and lost how much? 25. घुमा दिए. और जॉय के पास 112 मार्बल्स है और उसने कितने? 24 लॉस्ट कर दिए. ओके, सो राजा स्टार्टेड विद 1 मोर मार्बल. अगर आप 113 और 112 को कंपेयर करो, सो विच इज ग्रेटर? जो राजा के पास है 113, तो कितना इंक्रीज था? 1. ओके, बट राजा ऑल्सो लॉस्ट दैट 1 मोर मार्बल देन जॉय डिड. अब राजा एक्स्ट्रा मार्बल गेन करेगा +1, राइट? एंड राजाज एक्स्ट्रा मार्बल लॉस्ट इज -1. तो डिफरेंस कितना हुआ? 1 प्लस एंड 1 माइनस, दैट इज 0. So 113 minus 25 is equals to 112 minus 24. इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं. 113 minus 25 is 88 and 112 minus 24 is again 88. Same है. So this is the power of thinking logically. You save the time and got the right answer here. Now let's do the big exercise from the textbook here. Question says use greater than, smaller than or equal to compare. Can you do it without complicated calculation? So let's try. First expression says is 245 plus 289 and 246 plus 285. So in दोनों expression में से कौन सा is bigger? So how to do that? First we are going to compare only the first terms. लेकिन कितनी bigger है? That also we have to see. In 245 and 246, which is bigger? 246 is bigger. कितने से bigger है? +1 से. Let's go to the second term. It says 289 and 285. So which is bigger? The left hand side is bigger. That is 289. But how much? It is +4 bigger. Correct? So अगर हम करें +4 और लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर राइट हैंड साइड जाता है, तो प्लस क्या बन जाता है? -1. तो कितना बिगर है? 4 minus 1 is 3. Okay? So left hand side is a 3 bigger than the right hand side. So we are going to open the beak on 245 plus 289. Okay, the next one. ये तो थी एडिशन की बात. In the B part, it is a subtraction one. It says 273 minus 145 and 272 minus 144. तो compare वही करेंगे. It is 273 and 272. So which is greater? 273 कितना greater है? +1. Second is minus 145 and minus 144. तो अब कौन सा वाला bigger है? It is minus 144 is bigger. कितना? -1 bigger है. Clear? So +1 and -1 क्या हो जाता है? 0. So it is equals to sign in between. Clear? Now, C part says 364 plus 587 and 363 plus 589. तो compare कर लेते which is bigger? This is bigger by +1. अब 587 और 589 में which is bigger? 589 is bigger. कितना? +2 bigger है. Correct? So this one increases क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ क्या है? +2. तो अगर हम उसको उधर ले जाएंगे, so it is increased by +1 here. Okay? Next one is 124 और 129. So which is greater? This is greater. 245 और 245 ये तो दोनों सेम है, तो इसमें कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है. So which is greater from the first term? The right hand side one. That is 129 plus 245. The last part is 213 minus 77 and 214 minus 76. Again subtraction का question है.
So 213 और 214 में which is greater? This side is greater. और -77 और -76 में कौन सा greater है? -76 is more greater than -77. So right hand side wins here. So I'll draw B towards this side now. We solved all the 5 questions without heavy calculation. Did you feel how fun that was? तो चलो एक summary करते हैं. जब भी in addition होगा, then you have to track which side has net more. In subtraction, you have to track start value and the amount lost. Or equal changes is equals to equal results. Write this in your notebook now. Okay, now a quick preview of what is coming next. That is section 2.2. Sometimes when expression has no context, like उसकी कोई story ही नहीं होती उसके पीछे, then there can be more than one way to evaluate. जैसे for example, 2 plus 3 into 4 means 2 plus 3 into 4. This is equals to 20. Or is it 2 plus 3 into 4, that is 14? There are two different answers for the same expression. That's why we need to use the rules here. और उन rules को हम बोलते हैं order of operations, which we are going to cover in full details in video 2. So make sure you subscribe and hit the like button. And that's a wrap of video 1 of chapter 2, arithmetic expressions. If this video helped you, please give a big like. I'll see you in video 2, where things get more interesting with complex expressions and order of operations. Until then, keep practicing, keep smiling, and remember, maths is not hard. You just haven't found the right way yet. Bye-bye.